So this episode will not just only be the business lessons, will not just only be the life lessons, but I think more than that, it will be the parenting lessons for you guys as well. 1992 के अंदर जब celebrate किया गया, of course I was too young at that point, but I think whole of the city was invited. It was a grand, I would say, cake cutting. Cake came from some other city. I want Aira to have that sort of conversations कि कल को इसको $1 billion छोटी बातें लगें, कल को इसको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ बड़ा छोटा लगना चाहिए. अर्ली इमेजेस बिकम्स लाइफ लॉन्ग स्टैंडर्ड्स. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि वॉट एवर बेस्ट वी कैन इमेजिन फॉर आवर चाइल्ड वो हमें उनको एक्शंस में भी दिखाए. विजन एंड पेशेंस एक पूरी की पूरी फैमिली लाइन को चेंज कर देता है अगर आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर लेना. चाहिए तो एक घर था, अब इतने घर लेके कैसा लग रहा है? बार बार मूव करना इजी लग रहा है? ज़िंदगी में कभी भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम रेडी हों, स्ट्रगल के लिए भी और कंफर्ट के लिए भी. ये नहीं कि सिर्फ हम स्ट्रगल कर रहे हैं और उसको इंजॉय नहीं कर रहे, कंफर्ट नहीं ले रहे. House is where family is. I have lived alone for most of my life. My home is where my family, either in Mohali, either in Canada, or I go to some other country. आयरा, क्वेश्चन फॉर यू. यू रेडी? ओके. आपको कौन सा हाउस सबसे ज्यादा पसंद है? दादू हाउस, कनाडा वाला हाउस, मोहाली वाला हाउस, कौन सा सबसे अच्छा लगता है? दादू हाउस. वो सबसे अच्छा लगता है. क्यों? मैं वहाँ पे बहुत फन करी थी. मेरी पूरी फ्रेंड आती है. हाँ, वहाँ पे फ्रेंड आती है. ओके, आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉमिस इसके साथ यही हुआ है ना पॉडकास्ट करने का कि इसके बाद स्विंग्स में जाना है, पार्क में जाना है. लेसन सीखा है कि डोंट लेट द क्राउड डिसाइड योर स्टैंडर्ड. मतलब आप सुनो सबकी, करो मन की वाली फीलिंग है. So this episode will not just only be the business lessons, will not just only be the life lessons, but I think more than that, it will be the parenting lessons for you guys as well. So how the next generation can be built around that. So without taking time, let me introduce my family. Of course, this episode we are doing with the blessings of our Kana ji, Lord Krishna ji, and of course my late father, Mr. Ashok Watts ji, with his, I would say, divine blessings. We are doing this episode, and the backbone of our family, our mother, Ranju Watts. So she's like a social worker, backbone of our family, and a giver, I would say. Like she's always the one जो सबसे पहले सबको आप ये कह लो कि accommodate करने में सबसे front पे होती हैं. Then we have my brother Raghav Watts. He's into security services here in Canada. He's building his career into mortgage and financials thing over here, and definitely he has shared a long time with me. तो वो journey, वो moments हम आज remind करेंगे. And then we have my wife. She's an early childhood educator in Canada. She's a licensed insurance advisor here. More than that, she's the mother of boss baby, so we'll understand how the parenting goes around. And then we have our boss baby, Aira Watts. She's the princess. She's the boss baby. Aira, do you want to say hi? Hi everyone. Hi everyone. Okay, perfect. So I think let's start. सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो लाइफ की जर्नी रही है उसमें से हमने क्या लेसन्स लिए. मतलब व्हेन आई गो बैक, मैं देखता हूँ अपनी लाइफ को, तो डेफिनेटली देर आर थिंग्स जो बहुत अच्छी हुई पहले प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दी कि व्हाट कैन बी बिल्ड अराउंड. जैसे मेरा फर्स्ट बर्थडे 1992 के अंदर जब सेलिब्रेट किया गया, ऑफ कोर्स आई वाज टू यंग एट दैट पॉइंट, बट जब मैंने बड़ा होके उन बर्थडे सेलिब्रेशंस को देखा, इट वाज सो ग्रैंड. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 1992. I think whole of the city was invited. It was a grand, I would say, cake cutting. Cake came from some other city. It was a whole night. पूरी रात वाला वो जागरण था, and people, of course, family members, relatives, but more than that, the city people. तो वो जो एक सेट कर दिया गया पैटर्न, वो चीज़ आज भी मुझे याद आती है. तो आई थिंक सबसे पहले मैं मम्मा से जानना चाहूँगा कि जब वो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया पहला, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग इन द माइंड? मतलब जो प्लानिंग के टाइम पे क्या चीज़ें थी जो इतनी एग्जीक्यूट करेगी? पहले तो ये था कि हमें उस परमात्मा को थैंक यू बोलना है. तो इसके लिए हमने आपके पापा के साथ प्लानिंग की कि कुछ ऐसा हो कि जिसे देखकर बच्चे आगे जाकर उसको एक मील का पत्थर समझे और अपने लाइफ में आगे बढ़े. और उसका एक पर्पस ये भी था कि हम अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें. और उसके लिए हमने प्लान किया कि आम तौर पर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था कि छोटा सा केक घर में लाते और उसको कट करके अपना
चाय पानी पीते और फिनिश हो जाते। पर हमें था कि हमें कुछ अपने बच्चे के लिए ज़्यादा करना है, तो इसीलिए हमने सारा कुछ बड़े लेवल पे थोड़ा-सा सोचा कि बड़ा केक लाएँगे बच्चे के लिए और सबको इनवाइट किया कि वो हमारी खुशी में शामिल हो और बच्चों को ऐसा पता लगे बड़े होकर कि ऐसे जैसे घर की कोई भी खुशी है, हमें अपने सारे अपनों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करनी है, तो आगे चल के वो भी ऐसे करेंगे। तो यही था कि और ऐसे में आपके पापा ने और मैंने बहुत ही सोच समझ कर अपनी मन की खुशी को सबके साथ शेयर किया। तो पापा का क्या माइंडसेट था वहाँ पे, मतलब जब वो प्लान कर रहे थे, मतलब वो क्या चाहते थे कि जब ये बेटा बड़ा होके ये वीडियो देखे या उस चीज़ को फील करे कि क्या सेलिब्रेट कर रहा, तो क्या सोच थी? वो कहते थे कि बच्चे को बड़े होके पता चलना चाहिए कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके लिए क्या-क्या उनके मन में था, पेरेंट्स के मन में क्या-क्या था और वो चाहते थे कि बच्चे ऐसे ही बड़े होकर जब वो देखें कि हमारे पेरेंट्स ने आप मेरी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए सबके साथ इकट्ठे मिलके जो ये प्लान किया है, वो भी अपने परिवार को ऐसे ही आगे ले जाकर अपनी खुशियाँ सबके साथ बाँटे। राइट। जब उसके बाद मैंने देखा 94 में जब राघव आया, एंड देन उसके बाद राघव का बर्थडे भी एक ऐसा सेलिब्रेट किया गया, लाइक एट दैट लेवल अगेन, जागरण, केक कटिंग, वो बहुत ग्रैंड। उस टाइम पे तो मैं भी आई थिंक अराउंड 6-7 ईयर्स का था, एंड आई वाज लाइक कि मैं उसको रिमेंबर कर सकता था। तो व्हाट आई फील कि स्केल किसी चीज़ को कैसे करना, मतलब लाइफ शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ वे कि आप सिर्फ अपनी खुशियों को आपस आपस में नहीं बांट रहे, आप अपनी खुशियों को दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हो और आप अपने बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग आई गॉट। सो राघव, जब तुमने वो चीज़ देखी, लाइक अपने बर्थडे की वीडियो या मेरे बर्थडे की वीडियो, हाउ डिड यू फेल्ट दैट कि हमारी फैमिली ने उसको कहाँ तक, क्या मतलब बेंचमार्क सेट किया? आई फेल लाइक कि सारा कुछ जो भी है एक ग्रैंड लेवल पे होना चाहिए, ताकि चाहे 10 20 30 साल के बाद भी अगर वो वीडियो देखते हैं तो वो एक बार से फिर वो सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं। और रिकॉल समटाइम्स इट्स लाइक कि आप सोचते हो तो वो पूरा का पूरा आपको याद आता है कि हाँ वो कैसे था। अभी भी मैंने कई बार सोचता हूँ तो देखता कि यार हाँ बड़े अच्छे लेवल पे हमने सेलिब्रेट किया, सभी को बुलाया, गिफ्ट्स मिले। ऑफ कोर्स तब बच्चे थे, तब लगता था कि ठीक है। फिर उसके बाद अभी आयरा का देखा तो वो और भी अच्छा लगा उसको देख के। तो इट्स लाइक कि हाँ वो एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो गई, वो सेट हो गया एक स्टैंडर्ड हमारा। राइट, मतलब वो चीज़ अब रिपीट नहीं हो सकती, पहला या पहला ही था, पहला या पहला उस ही टाइम था। पे जो हुए हैं वो अब उतने ग्रैंड हाँ मतलब कर ही नहीं सकते, राइट? या सो इट्स दैट इज ट्रू। ऑलवेज आई वुड से कि यहाँ से लाइफ लेसन मेरे को ये मिलता है कि आपका विजन तो पहले बिग होना चाहिए और सेलिब्रेशंस उससे भी बिग होनी चाहिए। सो आकांक्षा, लाइक यू केम टू द फैमिली आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी गेट मैरिड, तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशंस, जब व्हेन यू हैव लुक्ड एट कि मेरे फर्स्ट बर्थडे की वीडियो या उसके बाद घर पे इसकी बर्थडे की वीडियो या जागरण हुए हमारे, मतलब वो सेलिब्रेशन स्टाइल, हाउ डिड यू परसीव दैट? एंड फर्दर क्वेश्चन वुड डेफिनेटली बी कि जब हमने आयरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा एंड वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट कि हमें उतना बिग करना है, तो what was the perception around that and what was the life lesson around that? Of course, when I celebrated my birthdays, so many birthdays with my family, I was overly joyed with having new dresses and going. I still remember those moments when I had to, when I bought buy a new dress, new heels, new necklace, and went to the school with my family, distribute sweets among everyone. That was a core memory. Then coming home, celebrating with my friends, family, and that is a cherishable memory throughout the life. Same, I think we always wanted to do the same thing with Ira, so that when she looks back at those videos of her birthday, still she does. I think जब हम लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, देन आई थिंक हम टफ टाइम में भी लाइफ को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं. That's true. That is a life lesson that I have learned. It creates good memories and it creates a good cherishable bond with the family members. Right. Ira, question for you. Sit down. Question for you. बैठो, अब आपसे पूछते हैं. I think it's a real podcast, कोई भी नहीं हो सकता. आयरा बताइए, do you like birthdays? Yeah. माइक में अच्छे से बैठ के माइक में. Okay. Yeah, I love birthdays. You love birthdays, okay. And do you like cake more or balloons? Balloon and cake. Both.
कौन सा केक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? white and chocolate. राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर आपके पास, ठीक है? आप सबसे घूम के वापस आपके पास आएंगे, आप आराम से बैठ जाओ. इफ यू वांट टू क्रॉस योर लेग्स, यू कैन क्रॉस योर लेग्स. सो आई थिंक फ्रॉम दैट बर्थडे मेमोरी व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई हैड फ्रॉम द फैमिली, द बेस्ट थिंग आई गॉट इज कि मेरे फादर ने, मदर ने हमें ये सिखाया कि सेलिब्रेशंस भी स्केल एंड विजन के साथ सेलिब्रेट की जा सकती हैं, बट ऑफ कोर्स विद एक्शन, नॉट इन जस्ट द वर्ड्स. सो नेक्स्ट इज़ कि मैंने अपनी लाइफ में ना ये भी बड़ा सीखा कि विजुअलाइजेशन क्रिएट्स डेस्टिनी. सो जब एक चाइल्ड अपने मेमोरीज़ को देखता है ना और उस मेमोरीज़ को रीलिव करता है इन थॉट्स, तो वो उसके लिए स्टैंडर्ड बन जाती हैं. आई हैव अ वेरी लाइक रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम आवर फैमिली. मैं यूजुअली कहता हूँ कि आई वांट आयरा टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेशंस कि कल को इसको $1 बिलियन डॉलर्स छोटी बातें लगें, कल को इसको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ बड़ा छोटा लगना चाहिए. बिकॉज if she learns ki yaar 100 crore is a very big thing, so to conceive that thought of earning that money or going at that level will actually scare her. So that comes from the thing कि आपके जो चीज़ें बचपन में आपको दी जाती हैं वही स्टैंडर्ड बनती हैं. आप उसके ऊपर बढ़ सकते हो, उसके नीचे नहीं जाते हो. So that came from that बर्थडे वाली मेमोरी कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑन फर्स्ट बर्थडे इज समथिंग वेरी नॉर्मल. तो मुझे जब इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो ये इसके नीचे तो नहीं जा सकता. हाँ, इससे कुछ बेटर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे मेरी क्वेश्चन ये है कि जब इसका हम बर्थडे प्लान कर रहे थे, लेट्स से, राइट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे. हम स्पेशल इंडिया गए, यहाँ से हमने ग्रैंड इवेंट करा एंड ऑफ कोर्स इंडिया में एक तो स्टीरियोटाइप भी है कि डॉटर, लड़कियों का फर्स्ट बर्थडे इतना क्यों मनाना. तो व्हेन पीपल अराउंड अस लाइक दे वर सेइंग कि क्यों करना, इतना बिग क्यों करना, हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट दैट माइंडसेट वाज हियर. तो हाउ वाज योर फीलिंग कि हम इसको कैसे ओवरटेक कर रहे हैं, हम क्यों, हमें ये मनाना चाहिए था, या क्या फीलिंग आई जब आपने वो इवेंट देखा? वो इवेंट देख के मुझे लगा कि बच्चा गर्ल्स और बॉयज़ नहीं होता, बच्चा बच्चा होता है माँ के लिए, तो माँ बाप के लिए, दोनों के लिए. तो खुशी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए. ये नहीं कि बेटा है तो बहुत बड़े स्केल पे करेंगे और बेटी है तो नॉर्मल कर लेंगे. तो ये देख के मुझे बाद बहुत अच्छा लगा कि जैसा इसके आप मतलब तुम्हारा किया गया बर्थडे, वैसा ही आयरा का किया जाना उससे भी बेटर होना चाहिए था. तो वो बेटर ही था. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि जो हम चाहते थे आपके बर्थडे पर, उससे भी कहीं बेटर मिला हमें आयरा राइट. के बर्थडे. राघव, व्हाट डू यू फील जब हमने आयरा का बर्थडे सेलिब्रेट करा? जब उसका बर्थडे था तो वही था, पुरानी मेमोरीज फिर से आ गई कि हाँ, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे फैमिली ने, हाँ, ग्रैंड सेलिब्रेशंस एंड सेम लाइक एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाना और अच्छे से सेलिब्रेट करना, तो उसी को आगे लेके जा रहे थे. और इट्स लाइक कि सेम थिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे नीचे नहीं गए, उसके आगे ही बढ़ रहे हैं. तो इट्स लाइक वी आर ग्रोइंग, सेम थिंग लाइक नेवर सेटल फॉर लेस, आई ऑलवेज कीप ऑन मूविंग अहेड. That's very right. That's very good message. Angsha, how do you see visualization shaping a child's memory, child's world? कि जब वो फर्स्ट ईयर की थी एंड उसने अपने बर्थडे को वहाँ पे एंजॉय करा, आज वो याद कर रही है, तो जो विजुअलाइजेशन है वो कैसे इसके वर्ल्ड को बेटर कर रही है? पेरेंटिंग टिप क्या है इसमें? I think as an ECE, I think visualization is a very important, plays a very important role in child's life. It helps developing cognitive ability of a child. For example, if a child, for example, she always thought on her third birthday, my friends would come, I would have a unicorn cake. She already visualized. She has understood the concept of how to celebrate birthday, but she didn't celebrate her third birthday. Her friends didn't come. No hands-on experience has happened. So when we planned everything according to her visualization, then the experience has happened and she understood that, okay, this is what visualization is and this is what hands-on experience is. ठीक है. So I think it is very important to shape child's brain, child's cognitive ability. She still visualize many things. For example, if I take an example of colors, mom, what orange and red mix would look like? I think it would look like green. So she visualized it already. Now I have to show. Now when I showed it,
she knows it has become an orange color. So that is a hands-on concept. Okay, So I think it is a very important thing for a child. right. Aira, do you like birthdays? Yeah. And Mike में. आपका फर्स्ट बर्थडे कैसे था जब आप 1 year old हुए थे? वो मेरा बहुत अच्छा था. क्या मेमोरी है उस बर्थडे की आपकी? लिटिल आयरा. लिटिल आयरा थी वहाँ पे, क्या कर रही थी लिटिल आयरा, कैसे आई थी वो? वो कार में. ओके, क्या हुआ था? वो बर्थडे में फन कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ. प्रीशा दीदी और नायना दीदी के और उनके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे. ठीक है, और अरे सीधे को बैठ. हाँ, अब वहाँ पे सिट डाउन कर लो, अच्छे से सिट डाउन कर लो, राइट, एंड देन आंसर. आपने जब अपनी पहली फर्स्ट बर्थडे की वीडियो देखी तो वीडियो देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा. क्या क्या देखा वीडियो में, क्या क्या हुआ था? बहुत सारा कुछ. कैसे बता सकते हो? कैंडीज, चॉकलेट, माइक में. कैंडीज, चॉकलेट्स, ओरियोस, मेंटोस. आपको वो वीडियो बार बार देखना अच्छा लगता है? ओके, राइट. So I think the message over here is कि early images becomes lifelong standards. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि whatever best we can imagine for our child वो हमें उनको actions में भी दिखाना चाहिए. And then it is like कि grandness जो है ना उसको fear भी नहीं करना चाहिए. मतलब अगर आप बड़ा सोच रहे हो और आपके around वो चीज़ें नहीं हैं that favor में and people are saying कि क्यों ही करना या इसकी क्या ज़रूरत, means let's say like pulling उस sense में कह सकते हैं, तो वो हमें उससे stuck नहीं होना. It should go in further way, right? Next, I think biggest memory from my life is about building homes. जब हमने अपना पहला घर बनाया, जब हमने सोचा इस आइडिया को भी कंसीव करा. So basically what I have learned is कि vision and patience एक पूरी की पूरी फैमिली लाइन को चेंज कर देता है अगर आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर लेना. जॉइंट हाउस में रहते थे, इट वाज डेफिनेटली अ बिग हाउस बट ओनली वन रूम वाज रियली यूजेबल. फ्रॉम देयर हमने आई थिंक शहर का सबसे लग्जूरियस हाउस उस टाइम पे बिल्ड किया. आज मल्टीपल होम्स इंडिया, कनाडा, बहुत कंट्रीज़ में हैं. तो हाउ डिड वी केम अक्रॉस? आई थिंक द आइडिया केम फ्रॉम माई मदर एंड फादर कि उस जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी, उस सर्कमस्टांसिस में भी हमने सबसे पहली चीज़ तो आइडिया कंसीव करना. ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो मम्मा आप बताओ कि लाइक हाउ वाज दैट आइडिया कि ओके हमें एक अपना घर बनाना है और इस तरह का घर बनाना है. देखो, घर वो कहते हैं ना कि सपनों का महल, वैसा मन होता है कि हमारा घर सपनों का महल हो. घर तो बहुत बड़ा था पर यूज़ में सिर्फ एक ही रूम आ रहा था, तो दिक्कत तो हो रही थी. तो बट ये जॉइंट फैमिली में थे, एकदम से कुछ नहीं हो सकता. तो थोड़ा ये सोचा कि चलो बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा और अच्छा उनकी चॉइस के मुताबिक बना लेंगे. सो करते करते थोड़ा धैर्य रखा, सोचते रहे तो फिर लॉन्ग टाइम सोचना, मतलब वेट तो करनी पड़ी पर मालिक ने वो पूरा किया. तो उससे पहले हमने अपने टाउन हाउस के घर से भी पहले हमने जलंधर में फ्लैट लिया. मालिक ने जब देना चाहा तो वो बहुत बड़ा दिया, और उसके बाद ये दिया बड़े वाला टाउन हाउस में बिग वाला हाउस दिया. तो ऐसे करते करते हमें मतलब था कि मेरा सपना पूरा जरूर होगा पर थोड़ा टाइम लेगा. तो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए तो एक घर था, अब इतने घर चाहिए. लेके कैसा लग रहा है? बार ऐसे बार मूव करना इजी लग रहा है? इजी तो नहीं लगता, बट ये कि नहीं, जब वो कहते हैं भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो ऐसा ही उन्होंने दे रहा है, वो बहुत दे रहा है. तो वो पहली फीलिंग क्या थी जब हमने अपने टाउन जलालाबाद के अंदर सबसे पहले हम अपने वार्ड्स मन्नत हम उसको नाम दिया था, तो जब हम उसमें मूव करे थे सारी फैमिली, हाउ वाज दैट फीलिंग? वो फीलिंग तो ऐसे है कि शायद उसे सपनों में वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है. सपनों का घर था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा कि ऐसी अचीवमेंट शायद ही भी मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने मिलके ऐसा बनाया कि बस बहुत अच्छा बना था. बिल्कुल राइट. हाँ. राघव, क्या मेमोरी है जब हमने ऑफ कोर्स जलंधर में फ्लैट लिया या जलालाबाद में घर बनाया? आई थिंक मोस्ट फीलिंग कम्स विद द जलालाबाद वाले हाउस. जलंधर में तो लिया ही लिया डेफिनेटली, बट दैट फीलिंग कम्स विद जलालाबाद वाला हाउस. तो क्या मेमोरी है? बिकॉज यू वर एट ग्राउंड कि जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही थी, एंड आई वाज लाइक इन जलंधर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो व्हाट्स द फीलिंग, व्हाट्स द मेमोरी अराउंड दैट?
it's like we were building something from this scratch. It took like 5 years to build, and that too with the best standards we can do compared to the whole city. Just like we say, good things take time, and they actually do, because it took 5 years for us to build that home. So I have all the memories. I started from scratch. I was working with all the contractors, looking around every single thing. So I got too many memories with that home. राइट आई मीन यस कहते हैं ना वो चर्चा होनी चाहिए, शोर होना चाहिए, काम में शोर होना चाहिए, तो वही था बेसिकली. वी वर गेटिंग रिस्पॉन्सेज इन अ वे, क्योंकि ना लेबर लोकल, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, लोकल. आई मीन एवरीथिंग के. लेट्स गो विद आकांक्षा. आकांक्षा, हाउ डू यू सी द meaning of house or meaning of home, like after looking at this journey of ours, and then we have got houses in Canada too, right? And of course lived in Mohali. मतलब इतनी जगह मूव करते रहते हैं. So what do you see the meaning of house and home? See, I will say it in a very small line. House is where family is. I have lived alone for most of my life. मतलब जब मैं कनाडा आई थी तो I have lived alone for most of my years, early years. Now that I have family, I want to, my home is where my family is. Either in Mohali, either in Canada, or I go to some other country. I want to stay with my मतलब family. प्लानिंग है और कंट्री में जाने की. That's what we are thinking too. Yeah. कनाडा छोड़ के अब कहीं और चलें. Sure, let's go. Ira, question for you. Are you ready? Okay. आपको कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा पसंद है? दादू हाउस, कनाडा वाला हाउस, मोहाली वाला हाउस, कौन सा सबसे अच्छा लगता है? माइक में आंसर दो. दादू हाउस, वो सबसे अच्छा लगता है. क्यों? इसलिए मैं वहाँ पे बहुत फन करती हूँ. मेरी पूरी फ्रेंड आती है. हाँ, वहाँ पे फ्रेंड आती है. ओके. एंड अभी जहाँ पे हम कनाडा वाले हाउस में रह रहे हैं, यहाँ पे सबसे फेवरेट रूम कौन सा है आपका? स्लीप रूम. स्लीप रूम, जहाँ पे सोते हो. आप तो कहते हो मेरे को सोना नहीं है. डू यू हैव अ टॉय रूम? Yeah, I have toy room. एंड डू यू लाइक टू गो टू पार्क? Yeah, I have Canada with heights and swings, climbing. Climbing, swings, going to park, you like it, right? Yeah, Okay, great. And going where? park. इसके बाद आप पार्क जा रहे हो. ओके, आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉमिस इसके साथ यही हुआ है ना पॉडकास्ट करने का कि इसके बाद स्विंग्स में जाना है, पार्क में जाना है. ओके, तो आई थिंक बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हियर इज कि जो भी लाइफ का ड्रीम होता है, ऑफ कोर्स दैट समटाइम्स आपको लग सकता है कि ये अभी पूरा होगा नहीं होगा, देयर कैन बी डाउट्स, बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द माइंड फर्स्ट, इट हैज़ टू कम इन द विजन फर्स्ट, देन ऑफ कोर्स इट टर्न्स इनटू ब्रिक्स एंड स्टोन्स. फर्दर देयर आर, आई वुड से, मोर थिंग्स कि गेटिंग फर्दर इनटू माय आई थिंक लाइफ, एक चीज़ और मैंने लेसन सीखा है कि डोंट लेट द क्राउड डिसाइड योर स्टैंडर्ड. मतलब आप सुनो सबकी, करो मन की वाली फीलिंग है. आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, बट उनके आगे सरेंडर मत कर दो. उनकी डायरेक्शन को सिर्फ फॉलो करने में मतलब जो, बिकॉज देन यू विल लूज योर रियल सेल्फ. आई थिंक दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एपिसोड एंड दिस पॉडकास्ट एज वेल, कि बी रियल, बिकॉज लाइफ में यूनिकनेस जो आपकी है ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देर आर प्रीटी मच, बहुत सारी स्टोरीज है मेरी लाइफ में से, बट सबसे बिगेस्ट स्टोरी जो मेरे को ध्यान है, like of course from a middle class family it's always like ki you should buy used items. For example, if you're going for vehicles, if you're going for car, मतलब अब used ले लो rather than going for new, क्योंकि माना जाता है कि depreciation पहले साल में सबसे ज़्यादा होती है. All sort of logics, right? But when it comes to me and my brother, हमने जब we demanded from our family कि जैसे मेरे को स्कूल जाने के लिए साइकिल चाहिए, या स्कूल जाने के लिए उसके बाद मोटर बाइक चाहिए, तो it didn't came right away. प्रेशर वॉज फ्रॉम अराउंड एज वेल कि ठीक है पुराना यूज भी तो ले सकते हैं, बट एट लास्ट आई गोट, मतलब मेरी फर्स्ट मोटर जो स्कूटी थी वो भी ब्रांड न्यू थी, मोटर बाइक था वो भी ब्रांड न्यू था. आई गॉट द कार एज वेल, दैट वाज आल्सो ब्रांड न्यू, एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक्ड बैक. तो आई थिंक दैट कम्स इन अ वे कि हाउ यू एंड फादर, हाउ यू एंड डैड वर एक्चुअली हैंडलिंग थिंग्स अराउंड, पर फिर भी जो डायरेक्शन आपने बच्चों के लिए सोची हुई थी वो आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे. ये कैसे था? ठीक है, बच्चों के लिए बहुत इच्छाएं होती है मन में, तो उसको पूरा करना पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है.
पर उसको पूरा करने के लिए रास्ते में रुकावटें भी बहुत आती हैं। तो ऐसे जब कोई भी चीज़ आपको चाहिए थी, आपने डिमांड की, तो हमने उस डिमांड को आपकी ज़िद नहीं बनने दिया, डिमांड को डिमांड रहने दिया। और जैसे कि हर घर में होता है, प्रेशर होता था कि चलो एक बार ये ले दो, पुरानी ले दो, फिर ले देना, फिर ले देना। पर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार के लिए पुरानी लेने के बजाय बच्चों को समझा सकते हैं कि थोड़ा वेट करो, और अगर लेके देंगे तो न्यू ही लेके देंगे। और उसका एक पर्पस ये भी था कि जो पुरानी चीज़ होती है उसके साथ जो उसके पुराने ओनर्स होते हैं उनकी मतलब फीलिंग्स, उनका सब कुछ होता है, अटैचमेंट होती है। तो किसी की अच्छी होती, किसी की नहीं भी अच्छी होती। तो हमें तो अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छी फीलिंग्स ही चाहिए थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हर वो चीज़ जिसके साथ बच्चा अटैच होगा, आगे जाकर होगा, तो वो उसके लिए बेस्ट ही होनी चाहिए। राइट। तो डिसीजन लेने हार्ड थे? हार्ड से भी हार्ड, बहुत हार्ड थे। पर राइट। एक बार सोच लिया कि ऐसा करना है तो करना है। मतलब किसी से ना तो बच्चों को जिद करनी सिखाई, ना खुद जिद की, पर थोड़ा वेट किया और उसको उसको उसके लिए हमने रास्ता ऐसे बनाया कि किसी को बुरा भी ना लगे और हर चीज़ टाइम से हो। राघव, व्हाट इज योर लर्निंग आउट ऑफ दैट? मैंने जो सीखा वो यही सीखा कि जो दिल चाहे और जो चीज़ आपको खुशी दे सिर्फ वही करनी चाहिए। ऐसे किसी की भी बातों में या सोसाइटी प्रेशर में आकर आप कुछ भी कर लो, आप अपने स्टैंडर्ड को या अपनी इमेज को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो जो आपको अच्छा लगे सिर्फ वही करो, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। Right. And Akanksha, how do this lesson show up in how we raise our family now? Since we live together, I think it is very important to live together. That's a first. And second, I think जब हम साथ में रहते हैं तो आने वाली generations को वो values जो बड़ों से मिलनी चाहिए, from everyone, from चाचू, from दादी, जो भी इसको values मिल रही हैं आयरा को, I think best मिल रही हैं। तो शी इज़ लर्निंग कि जैसे मम्मा ने कहा कि ज़िद नहीं करनी चाहिए, तो इसको भी सिखाया है कि ज़िद नहीं करनी चाहिए, वेट करो, आपको चीज़ मिल जाएगी। यू हैव टू अर्न इट, यू डोंट हैव टू क्राई फॉर इट। तो आई थिंक दोज वैल्यूज शी इज़ गेटिंग ऑलरेडी, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर हर। तो अगर लेट्स से फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारे आसपास जो एक्सटर्नल सोसाइटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, प्रेशर आ रहा है कुछ चीज़ पर, तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन एज अ पेरेंट? I think the pressure was always there and pressure is always there. To how to raise a child, why your child is not doing this, how your child is doing this, why he or she is talking, not talking. So I think it really matters what is happening within. It won't. I think society is not affecting us anymore. राइट, दैट मेक सेंस। आई थिंक आयराज टर्न इज नाउ। आप बताओ, जब आप टॉयज लेते हो अपने, तो टॉयज कौन चूज करता है आपके लिए? आप खुद चूज करते हो कि मम्मा चूज करते हैं? मैं कैसे, क्या देखते हो टॉय लेने के लिए आप? कार कार। और आपने कहाँ कहाँ से टॉयज लिए हैं रिसेंटली? जैसे हम जब मोहाली से यहाँ आ रहे थे तो आपने एयरपोर्ट पे भी टॉयज लिए? कौन से टॉयज लिए थे वहाँ से? आइसक्रीम भी खाई है। टॉयज लेने कहाँ जाते हो? कौन सा फेवरेट स्टोर है आपका टॉयज लेने कहाँ जाते हो? आंटी स्टोर, आंटी वहाँ से टॉय मिलते हैं। जहाँ से? टीटी डैड। Okay, let's move next. I think even though you get the new things always, but कई बार क्या होता है कि हम ना चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. That also a lesson कि आपकी जो लाइफ की फर्स्ट चीज़ें होती हैं, could be first house, first motor bike, वो आपको अटैचमेंट सिखाती हैं. But I learned that you should learn detachment. So enjoy things, but never let things own you. That is the another lesson I got. Of course, when I mentioned like first bike, first car, first सारी चीज़ें, क्योंकि it never happened from the family point of view कि आपको पहली चीज़ नहीं मिली थी, अब उसी के साथ long time आप रहो. Whenever the opportunity came कि आपको उसको upgrade कर देना चाहिए, regardless of the money concerns or regardless of the external concerns, it has been upgraded. So as the sense of detachment also comes कि एक चीज़ पे ना बस वो नहीं हो जाना, रुक नहीं जाना. तो there was a lesson in that sense also कि खड़े पानी को भी ग्रीनरी वहाँ पे आ जाती है. तो you should be always like a moving water. Don't get detached to that one location, one, I would say, one piece of any object.
तो मम्मा मतलब ऐसी चीज़ों, ऐसे मैसेजेस हेलो सिखाने, ऐसी लाइफस्टाइल देने में मतलब व्हाट वाज योर माइंडसेट? आपने यू मतलब क्या सोच के ऐसी चीज़ें सिखाई? क्यों मतलब लाइफ को हर नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ाते गए सो इट फील्स लाइक इट्स अ जर्नी, नॉट कि अब ये मिल गया और रुक जाओ। नहीं, रुकना तो चाहिए ही नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। रुकना तो कहते हैं ना, चलते जाना ही ज़िंदगी है, हम्म, तो ऐसे चलना चाहिए। अगर एक चीज़ के साथ हम बंध के रह जाएंगे तो फिर हम दूसरी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो फिर ऐसे ही अगर यही वही पुराने वाला सवाल कि अगर हम पहले उसी घर में एडजस्ट कर लेते तो हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो ऐसे है कि पिछला जो छोड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप लेने के लिए पिछले स्टेप को उठाना ही पड़ता है। तो राइट। यही सोच थी कि यही हमने आपको सिखाया कि आपने आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा आपको कि पीछे से स्टेप उठाओ, आगे बढ़ो। राइट। सो ये जो थॉट है कि आगे बढ़ो, पीछे की चीज़ को एक बार जो चीज़ मिली एंजॉय करो डेफिनेटली उस चीज़ को, बट लेट्स मूव अहेड, लाइफ में कभी स्टक ना हो। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन अराउंड दैट? क्या सोच है, क्या फील है इसके अराउंड? कोई भी चीज़ जब मिलती है, किसी भी चीज़ का से पोजेशन लेते हैं हम, तो इट्स फील लाइक कि कुछ अचीव करा, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट हाँ, डिटैचमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो वो अच्छा नहीं है। इट्स बेटर टू फोकस ऑन रिलेशनशिप्स मोर देन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो इट्स लाइक कि हाँ, आगे बढ़ते रहो, बट हाँ, फैमिली को साथ रखो हमेशा, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। राइट। एंड आई थिंक इन आवर फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी ऑल्सो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फल मिलता जाता है बट उस फल को लेके मत बैठ जाओ ना, लाइक यू गो नेक्स्ट एंड डू योर नेक्स्ट कर्म ताकि और आगे बढ़ो। सो आकांक्षा, व्हाट डज हेल्थी अटैचमेंट टू थिंग्स मीन्स टू यू एज पेरेंट? We should value our possession in love and comfort, but we should not rely on it, right? For life or for safety. For example, let's take Ira. Ira loves her bag. Ira has so many bags. शी गुड वन हर Yeah, वन एज ऑफ नाउ she's एज वेल। right there. अरे अपना She's बैग दिखाना। show her bag. Show your bag, Ira. ओह She love her bags, but it is, I think we as parents make sure that it is a healthy attachment. She should also detach with it when she has time. When we ask her to put her bags away, she kindly do so. She open her closet and put her bags away. There is no crying or tantrum or anything, so that is a healthy attachment. And she also knows how to detach from it. She knows her comfort, she knows her limit with the thing. If she had, when it's time to clean up, it's no longer to play with toys. The time is over, you should not play with your toys, so she'll put her toys, but she knows her boundaries with things. right. So like the way we have learned, I think we are trying to put it forward in a way कि possessions should stay tools, not become identity. Yes. तो वो आप खेलो मजे करो, बट ये नहीं कि अब ये मेरा ही है, तो मतलब दैट Move on. सेंस कि वो आपको एग्रेशन दे दे या कुछ चीज़ें Yeah. ऐसी दे दें, ईगो दे दे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड लेसन आई वुड से। सो आयरा, योर टर्न। Yeah. ओके, डू यू लाइक योर बैग्स? Yeah. हाउ मेनी बैग्स यू हैव? 1, 2, 3, 4, 5. 5 बैग्स। एंड कौन सा सबसे फेवरेट वाला है आपका उसमें से? This दिस वन। कहाँ से लिया है आपने? ये कहाँ से लिया है? उस बैग में अभी क्या है इसमें? Oh. bag. ओ बैंगल। और क्या है? बोल के बताओ, व्हाट इज दिस? जय माता जी. ओके, a lot of things. गर्ल्स के बैग्स में बहुत सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी। शी इज गेटिंग ऑन दैट ट्रैक, राइट? पेन। Okay, let's go ahead. So I think the other parenting lesson what we have learned, or I would say it's a more than a parenting lesson से ज़्यादा ये life lesson है। Be smart, comfort is love. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ comfort ही मिलनी चाहिए। You should also go through challenges. Because good parenting solves problems with wisdom and comfort. ऐसा नहीं है कि सिर्फ push down करते रहो, comfort भी देनी है और wisdom भी देनी है। So there's a very interesting story. I mean, I remember मम्मा एंड पापा ने जब मेरे को बताया था कि वैष्णो देवी ट्रिप पे हम गए थे, तो वैष्णो देवी ट्रिप के अंदर आई वाज लाइक प्रोबेबली अराउंड 2 or 3। तो सारे ट्रिप के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे आई मीन लोकल पीपल हैव बीन थ्रू वहाँ पे उस यात्रा में थे।
तो बीइंग यंग कहीं पे मोंकी देखा होगा, मोंकी से फैसिनेट हुआ, मेरे को ये था कि अब मोंकी चाहिए, तो इट वाज लाइक कि मेरे को अब मोंकी ही चाहिए। एंड वो उस टाइम पे व्हाट आई हर्ड फ्रॉम स्टोरी फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स फादर कि रैदर देन स्कोल्डिंग की डांटना अभी मोंकी नहीं मिल सकता या ये नहीं हो सकता, मतलब यू गाइस हैव ट्राइड टू रिजॉल्व अराउंड इन अ स्मार्ट वे कि पापा ने अपने एक फ्रेंड को बोला कि उन्होंने फिर प्रिटेंड किया, उन्होंने मोंकी का वहाँ पे स्क्रिप्ट करी, उन्होंने मंकी बन के पूरी उसके बाद जर्नी करी। तो ये एक चीज़ थी कि सूद भी कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ उस बच्चे की इमेजिनेशन वहीं पर रोक दी, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से वो कह दिया जाता ना कि ऐसे थोड़ी मंकी मिलते हैं, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है, तो जो इमेजिनेशन होती है बच्चे की फ्री माइंडेड कि मेरे को ये भी मिल सकता है, मेरे को वो भी मिल सकता है, मैं ये भी ले सकता हूँ, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती। तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपसे कि आपको उस जर्नी की सबसे मेमोरेबल चीज़ क्या याद है? मेमोरेबल यही है कि उस समय तो लग रहा था कि बच्चे की डिमांड कैसी हो सकती है कि ये भी मंकी भी कोई लेने वाली चीज़ है। बट ये हम सोचते थे, हम समझते थे कि ये लेने वाली चीज़ नहीं, पर बच्चा कैसे समझे, ये तो समझाना बहुत मुश्किल था। तो उसको बोला कि कोई बात नहीं, ये इसको हाथ लगाएंगे, ये काटेगा, ये करेगा। बट नहीं मानने वाला बच्चा, बच्चा 2 साल का बच्चा है तो वो जिद कर रहा था। तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए आपके पापा ने सोचा कि कुछ ऐसा करते कि इसको बोलते हैं कि ले देते। तो उनके एक फ्रेंड थे, वो बोले कि क्या मांग रहा है। तो हमने बताया कि ये मोंकी मांग रहा है। तो कहता है ये चाचू तो आपका चाचू ये मोंकी है, ये मेरे साथ प्ले करो। देखो मोंकी कैसे, जैसे जैसे वो मोंकी को दिखाता था कि वो ऐसे जंप कर रहा है तो वैसे वैसे एक्शन करने लगा। तो इतने में आपका ध्यान मोंकी से हट गया और चाचू के साथ प्ले करने लग गए। तो ऐसे करके पापा ने और उस चाचू ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि उन्होंने बहुत अच्छे से आपको हैंडल किया। और हम भी हैप्पी थे कि आपने भी ऐसे ही किया कि चलो समझ लिया चीज़ को। समझ लिया उसको कि कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं तो यही होगा। कि उस समय बच्चे की एज ऐसी होती है कि जो पेरेंट्स कह देते उसी को मान लेते। अगर हम डांट देते कि ये नहीं मिल सकता तो शायद वो एक माइंड मेमोरी बन जाती कि ये जो चीज़ पेरेंट्स ने कहती वो कभी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा था। राइट। तो आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पेरेंटिंग लेसन। नेक्स्ट टर्न राघव की आने वाली है पेरेंटिंग में, तो उससे पूछते हैं राघव, व्हाट डिड यू थिंक कि इस तरह की पेरेंटिंग क्या सिखाती है, मतलब क्या टेक्निक है, ये कैसे हैंडल करना चाहिए? इससे यही सीखने को मिलता है कि हर चीज़ को हैंडल करने के दो तरीके हैं, इधर स्मार्ट वे या हार्ड वे। अगर हार्ड वे में जाएंगे तो बच्चे की और ज़िद्दी बनेंगे या अच्छा नहीं रहेगा। स्मार्ट वे में उसको एक अलग तरीके से डील करा, बच्चा भी खुश हो गया। इसलिए कि उसकी इनोवेशन को या इमेजिनेशन को वो वहाँ रोका नहीं, उसको आगे बढ़ने दिया, उसको फ्री कर दिया कि हाँ वो कुछ भी सोचे, हर चीज़ पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। तो इट्स यही सीखने को मिलता है इसी से। राइट, दैट्स ट्रू। एंड आकांक्षा, व्हाट डज दिस से अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इन पेरेंटिंग? I think emotional intelligence is a bridge between how you feel, what you feel, and how you act. I think your story says you might have been a bit upset that you are not getting a monkey, but you chose not to react that way. You chose to see what's in front of you, and you chose how I can be happy with it. You redirected your mind. Your mind redirected itself with the help of your parents, and that's how you regulated your behavior. You regulated your emotions that, okay, I choose not to feel upset. I'm happy with what's happening in front of me. So I think it is a very crucial milestone of child's life. Emotion regulation. That's what we are teaching our daughter at this moment. Right. So according to you, what kind of comfort do children really need in these situations? They need love and understanding. You have to go on their level and you have to understand what emotions they are feeling. If they are throwing tantrum, why are they throwing tantrum? If instead of saying don't throw the tantrum, you have to understand that child is upset, why he or she is upset. Go to them, talk to them. They will understand you. Right. Have some patience, and you having patience will make your children more active listeners and will have more patience in them. Right. Ira, your turn. Let's have answer from you. Do you like going to trips? Yeah. घूमने जाना अच्छा लगता है फैमिली के साथ? कहाँ कहाँ पे घूमे हो अभी तक फैमिली के साथ? स्लाइड वाले में चले
स्लाइड्स वाले पे गए थे। और कहाँ घूमे हम? आप अभी रिसेंटली कहाँ गए थे? एडमिंटन गए थे? कहाँ, वहाँ पे किसको मिले थे? किसको मिले थे? आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मोनिका, ओके, और टेसा, और दवीजा, और आतिशका। ओके, यहाँ पे सबको वेव एंड कर दो नाम लेके। हाय वेरोनिका, हाय रोनिका, और फिर नेक्स्ट हाय दिस्या, हाय टेसा, और हाय दवीजा, और आतिशका। ओके, मायरा। वन, हाय नफीरो। और बस बच। ठीक है, अभी कहाँ घूमने जाना चाहते हो आप? अमायरा के पास जाना चाहते हो? और कहाँ पे घूमना चाहते हो? फ्लाइट स्लाइड्स पे। स्लाइड्स इज ऑल टाइम फेवरेट, राइट? अब चलो। I think the biggest takeaway is a child remember how they were made to feel safe उस सिचुएशन में जहाँ पे वो अग्रेसिव हो सकता है, जहाँ पे उसको लाइफ का ये लेसन मिल सकता है कि भाई जो भी मांग लो मिलना नहीं है, या जो भी बोल दो मेरे को डांट ही पड़नी है, रादर देन ये साइकोलॉजी बनने से पहले आप उसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। एंड इस स्टोरी से ना मेरे को एक और बड़ा सही व्हाट आई वुड से कि मैंने मैसेज ड्राइव किया, मैंने लेसन ड्राइव किया है कि राइट सर्कल मैटर्स। आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा जितना मर्जी आप आउटर सर्कल रख लो, बट एक अंदर वाला जो सर्कल, इनर सर्कल जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी वेरी, आई वुड से कि सिलेक्टिव पीपल होने चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे वो फ्रेंड उस तरह से एक्ट ना करते, या पापा को उस लेवल का कॉन्फिडेंस ना होता अपने फ्रेंड्स पे कि हाँ ये कुछ भी कर देंगे, राइट, तो वो चीज़ शायद एग्जीक्यूट ना होती। तो आई थिंक टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड, मेरी फ्रेंडशिप्स लाइफ में ऐसी हैं, मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स ऑफ कोर्स विद इनर सर्कल, वो आज भी उतने ही क्लोज हैं। देन कम्स टू यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट फ्रेंड्स बने वो आज भी उतने क्लोज हैं। देन कम्स कनाडा, जब कनाडा में आके फर्स्ट फ्रेंड्स बने वो आज भी उतने क्लोज हैं। तो ये सारी सिलेक्टिवनेस की लर्निंग फ्रॉम दैट फैमिली अपब्रिंगिंग, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ स्टोरी वो सामने आए, एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन फेवर। लाइफ के अंदर कुछ भी करो तो यू हैव दोज पीपल जिनको आप एक बार में कॉल कर सकते हो, और यू कैन गेट दोज थिंग्स डन, राइट? सो आई वुड लाइक टू टेक राघव्स टेक ऑन दिस कि फ्रेंडशिप्स के मामले में जो हमने यहाँ से सीखा, फैमिली से सीखा, डैड की जर्नी से सीखा, what like your friendship circle is the same way, what is your understanding about that, and what life lesson I would say about friendships we have from it? लाइक फ्रेंडशिप्स होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स कम हो या ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करता, पर अच्छे होने चाहिए। हाँ, ज़्यादा भी हों पर अच्छे हों। तो इस लाइक कई बार हम सोचते हैं कि 2 या 3 होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, पर नहीं। मेरा सर्कल इज़ लाइक मैंने 3 स्कूल चेंज करे, मेरे हर स्कूल्स के फ्रेंड हैं, सारे ही क्लोज़ हैं। उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज़, 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, उस काम के फ्रेंड्स, वैसे नॉर्मल फ्रेंड्स तो बहुत हैं। हर सर्कल में आपको कुछ ना कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएँगे। तो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाओ उतना ही अच्छा है। कोई पता नहीं होता आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कौन आपके किस काम आ जाए। तो आप सर्कल बड़ा रखना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। I think वही lesson हमने लिया, I followed the same, you followed the same, definitely coming from the family upbringing in that way, Yeah. कि to have a very big circle. So Only 1 minute. Akanksha, what is your understanding about friendship, and what sort of friends actually support growth? I think for me, friends are someone who helps you, who stays with you through thick and thin, who wants you to do better and pushes you to do better. I think I have few friends. I don't have many friends. I have few friends from kindergarten age, and still they are my friends. I call them or I don't call them. When I call them, they'll be there. Right, So I have earned those friendships. right. ममा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी सेलेक्टिव फ्रेंड्स लाइफ में होने क्यों ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है, बट कुछ ख़ास दोस्त होने चाहिए। जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, अपने बहुत ज़्यादा क्लोज से नहीं कर सकते शेयर, हम पर हम फ्रेंड से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स भी ऐसे हो कि जो आपको भी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा समझे, कि आपका कोई सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रखे। और जब आपको ज़रूरत हो तो वो ये ना देखे कि दिन है कि रात है, वो आपके उसी समय आपके काम आए। तो ऐसे फ्रेंड्स तो होने ज़रूरी है। नो मैटर कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, पर जितने भी हो अच्छे हों।
जो राइट जो फ्रेंड्स देखते हैं कि कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ दिखावे के फ्रेंड्स होते हैं, वो हमको भी समझ आ जाती है कि कौन हमारा अच्छा फ्रेंड है कौन नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी बात भी जो है अपना जो शेयर करना है ऐसे फ्रेंड्स ही खास बनाओ जो आपको लगे कि आपका आईना ही है। ट्रस्ट मस्ट बी सिलेक्टिव, राइट। आयरा, आपका कौन सबसे बेस्ट फ्रेंड है? चाचू वेरी Yay. या, here you go. Ira, who else? चलो चाचू के साथ क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? टॉय टॉयज प्ले करना। क्या प्ले करते हैं चाचू आपके साथ? I wrote videos, elephant. वीडियो रेलिवेंट You like to watch videos with चाचू? Okay, great. I think that's true कि ये भी साइकोलॉजी में एक लेसन कहा जाता है कि यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फ्रेंड्स अराउंड यू। जो 5 लोग आपके साथ हैं, जो सबसे क्लोज फ्रेंड हैं, आप उन्हीं की तरह बन जाती है। यू हैव दोज फ्रेंड जो आपको चैलेंज करते हैं लाइफ में, तो आप उतना ही आगे बढ़ जाओगे, ग्रोथ कर जाओगे। और जो आपके फ्रेंड आपको चैलेंज नहीं कर रहे, मतलब बल्कि पीछे को खींच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ग्रोथ, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर इट इज, तो आप पीछे हो जाओगे। दैट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट। एंड देन नेक्स्ट व्हाट लेसन आई गॉट फ्रॉम फैमिली इज कि आइडेंटिटी इज बिल्ट थ्रू सर्विस। आप ये समझो कि आपको जो विरासत में मिला, लाइक व्हाट यू इनहेरिट एज अ नेम, आप वो तो ले ही रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर ही रहे हो, बट यू स्टिल कैन बिल्ड योर आइडेंटिटी। एंड फ्रॉम माई फादर फिगर व्हाट आई हैव लर्नड कि वो पढ़ना चाहते थे जैसे, बट फैमिली स्ट्रक्चर में उनको 10th के बाद ही फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना पड़ा। उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, बट साथ के साथ बिजनेस के साथ उन्होंने चैरिटेबल काम किए, मंदिर पूरा संभाला, देयर वाज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, देयर वाज अ श्राइन इन हरिद्वार, वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कोर्स फ्रॉम द फैमिली, जैसे कि टेम्पल की जो इनिशियल लैंड जब तक वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इट वाज इन आवर हाउस, सम स्टोरी अराउंड दैट। बट ड्यूरिंग हिज जर्नी, मतलब वो सिर्फ ये नहीं जाने जाते थे कि ही इज़ अ क्लोथ मर्चेंट, ही इज़ अ बिजनेस मैन। वो ये जाने जाते थे कि वो सोशल वर्कर हैं, वो पूरे समाज में थ्रू सर्विसेज वो हेल्प कर रहे हैं। सो बिजनेस विरासत में मिला, वो भी संभाला, साथ के साथ उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी। एंड दैट इज़ द थिंग व्हाट आई टुक एज अ लेसन कि जो आपको विरासत में मिलता है वो तो आपके पास है ही है, बट आप उससे भी आगे की चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। एंड यू कैन लेट योर नेम शाइन इन दैट एज वेल। सो आप बताओ मम्मा पापा की जो ये सर्विस थी, या ये जो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई, हाउ डिड इट केम टू द फाइनल एग्जीक्यूशन? मतलब कैसे बनी, क्या जर्नी टफ थी, कैसे वो मैनेज कर रहे थे घर, बिजनेस और सोशल सर्विस को? देखो हर इंसान के अंदर इच्छा होती है कि मैं ये करूं मैं वो करूं, पर कई बार परिवार का ऐसा हो जाता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है पहले टाइम में। अब तो चलो पेरेंट्स भी वैसे ही अंडरस्टैंड करते हैं। उनका उनका मन था कि आगे पढ़ने का करने का, बट नहीं कर सके। तो जब वैसे भी उस समय था जो बड़े बोल देते थे वैसे ही करते। उनको बिजनेस संभालने को बोला गया तो वो बिजनेस में आ गए, पर उनका मन था कि कुछ करने का, सेवा करने का, सेवा का मन था उनका। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बिजनेस में भी दिया और पूरी तरह से उन्होंने दूसरी तरफ भी अपने आप को लगाया। उन्होंने सेवा की, बहुत सारे मतलब संस्थाओं के साथ वो उनका था। तो वो अपना 100% अपने बिजनेस को देते थे, तो 110% अपनी सेवा को देते थे। ऐसा कि उन्होंने दोनों को बैलेंस बना के चला। और इसके बाद भी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए जो किया उसका तो हम सोच ही नहीं सकते कि कितना किया है। पर कहीं भी जब लगता था कि उनको ज़रूरत होती थी तो परिवार वाले उनके साथ ही थे। तो ऐसे उन्होंने मैनेज परिवार, किया। हाँ, दोनों Raghav, चीज़ों को what हैंडल did किया। you learn while seeing him handle so many responsibilities? I think you have worked very closely जब business में, like I was not at all family business के अंदर जो विरासत में मिला, you have handled that. तो business के साथ, मंदिर के साथ, you have seen him very closely in actually real execution in the world. So what you have learned out of that? What is your understanding? What I have learned from him is like multitasking and setting priorities. Like if you set priorities, you will make up for it. There is like no excuse. If you really want to do something, you will do it. Yeah, of course, you have to put in extra efforts. You have to manage so many things side by side, deal with business clients, also deal with the social services and events. Yeah, so he was so good at managing that. I have learned that, but still, it's like
he was perfect, but I'm trying to get there soon. Right, definitely. We're following his steps on that part. So, Akanksha, what does identity through service means to you? I think since I was very young, I have seen my father, my grandfather doing services. My father is a doctor. I have seen him helping mention. other people. I have the people sometimes there are many needy people who comes to him and ask for medicines. They don't have money. He don't even ask from money from them. He just gave the medicine. I think one day I do I think one day I went with my father. हम एक आइसक्रीम शॉप पे गए. वहाँ पे एक जेंटलमैन थे. उन्होंने मेरे फादर का हैंड हेल्ड किया और बोला कि यू डोंट नो एंड टोल्ड मी दैट यू डोंट नो व्हाट ही इज़ टू मी. ही इज़ अ गॉड टू मी. He has helped me when nobody helped me. He was there for me when nobody was there for me. So I think I learned this lesson from him, and खाएंगे. I think I have learned this lesson from him, from Mama, and everyone who's older than me that everyone who's older than me that we should help others. Right. I think when I came to the family, after getting married, when I came to the family, I always heard your father was like this. He has done so much social work. Your mother is such an empowering woman. That's what I heard from every relative because I was very new, so I didn't know them. But now I know her. She's actually a very patient, empowering woman. I do keen to learn from her very much, especially how to keep patience. Right. when नैपकिन खाऊंगी. नहीं आज नहीं ओके, खाएंगे आयरा. हम इसके बाद सारे आइसक्रीम पार्टी पे चलते हैं, ठीक है? ओके आयरा, क्वेश्चन फॉर यू. जब आप बिग हो जाओगे, आप अभी हेल्प करते हो लोगों की? हेल्प करना अच्छी बात है. शेयर करते हैं चीज़ें. क्यों शेयर क्यों करना चाहिए हमें? इसलिए करना चाहिए कि बच्चे सैड ना हो जाए, टू मेक देम हैप्पी. या और अब जब बिग हो जाओगे तो आप और हेल्प करा करोगे और शेयर करा करोगे. मैं उनको ग्राने नहीं दूंगी. और कैसे हेल्प करोगे? टाइगर उनको आएगा तो मैं टाइगर को एप्पल दे दूंगी. टाइगर को एप्पल दे दोगे तो फिर वो खाएगा नहीं किसी को? खाएगा. फिर किसको खाएगा वो? नहीं खाएगा. नहीं खाएगा. ठीक है. एप्पल खाएगा. Okay. I think the biggest takeaway from this is कि service turns inheritance into legacy. So जब आप when you work more for people तो आपको जो inheritance में मिला वो तो है ही है. It's more कि आप अपनी identity साथ दुनिया में बना रहे हो. And of course give more back to the world. जितना भगवान ने आपको दिया है, जितना काबिल बनाया है, उससे ज़्यादा आपको वापस देना चाहिए दुनिया को. We have seen from the life of father in different organizations and different charitable things, and I remember my conversation with him during the last days of his life कि इतने businesses अलग-अलग जगह पे करने की बजाय you should put it into one thing which we called Watts Group. And आज Watts Group is trying in a best way कि हम through our community service, through our CSR responsibilities, through different हम parenting channel run कर रहे हैं, music channel run कर रहे हैं. I mean, in a lot of things, every business is built around कि it should go back to the society. It should give more help to the society in that way. So I think what I further learned कि मतलब एक जो travel जिंदगी में ना, travel expands the mind. Travel does not change where you go, it changes how you think. जिंदगी में ना सफ़र करेंगे तो पता चलेगा कि ज़िंदगी खुद ही एक सफ़र है. तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम फैमिली. एंड जर्नी को इंजॉय करना इज़ ऑल्सो अ पार्ट. आई रिमेंबर द रीसेंट ट्रिप वी हैड विच वाज लाइक हमने 4-5 दिन का रोड ट्रिप था. वी वेंट टू आगरा, वृंदावन, जयपुर, खाटू श्याम जी. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर मेरा फर्स्ट ट्रिप बाय फ्लाइट वाज इन 2009. आई थिंक आई वाज जस्ट 18 years old एंड सॉर्ट ऑफ फर्स्ट ट्रिप, वो भी जहाज़ में, वो भी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ. एंड इट चेंज्ड माई लाइफ पर्सपेक्टिव. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉट जस्ट गोइंग देयर, इट इज़ अराउंड जर्नी ऑल्सो, क्योंकि आप रास्ते में क्या सोच रहे हो. बिकॉज आई हैव सीन सम मिडिल क्लास फैमिलीज, मोस्टली क्या होता है माइंडसेट कि
घर से खाना पैक कर लो, ले जाओ, वहाँ पे सिर्फ चाय लो और उसके बाद वो मैनेज कर लो, मतलब आप वहाँ जाके भी वहाँ के एक्सपीरियंसेस को नहीं एंजॉय कर रहे, एंड यू आर टेकिंग दैट बर्डन ऑफ योर हाउस अगेन ऑन दैट। तो जर्नी में एक्सपीरियंस क्या आएगा जब माइंडसेट ही पीछे रह जाएगा। आई सीन फ्रॉम माई फैमिली कि ऐसा कभी पापा ने या मम्मा ने ये चीज़ें नहीं करी। इट वॉज ऑलवेज कि जब घूमने जा रहे हैं तो चिल, बट वेन यू आर कमिंग बैक देयर इज अनदर लेसन दैट यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ, पार्टी हार्ड, वर्क हार्ड। तो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट पापा और आपका उस टाइम पे था कि जब बच्चों को घुमाने लेके जा रहे थे तो मनी वाज नेवर अ कंसर्न, रिगार्डलेस इफ मनी वाज लिमिटेड और नॉट, कि खुला खाओ वाला फंडा था वहाँ पे? हमारी सोच ये थी कि मनी बहुत कुछ होता है पर मनी सब कुछ नहीं होता। जो मनी के सामने बच्चों की खुशी है वो कुछ मायने नहीं रखता, मनी नहीं रखता कुछ भी मायने। तो इसलिए वो जब अपना घर पे अपने बिजनेस में ध्यान देते थे तो पूरा ध्यान से काम करते थे, अपनी लगन से करते थे। और उनका था कि जब घूमने जा रहे हैं तो फिर अगर बिजनेस को साथ ले गए तो फिर क्या फ़ायदा बाहर जाने का, फिर तो मनी वेस्ट ही है। तो कहते थे कि अगर जाना है चाहे थोड़े टाइम के लिए चले जाओ, ना 10-15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए चले जाओ, पर जाओ तो पूरा तन और मन दोनों से जाओ। और वहाँ जाते थे तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप ये मत लो, वो मत लो, जो भी लेना ले लो, आराम से ले लो। और खाने पीने का तो उनको खुद को शौक था। वो घर में ठीक है अपना सिंपल खाना लाइक करते थे, बट दूसरा भी वो बाहर जाकर खाना पसंद करते थे। और वैसे भी रहना सहना उनको था कि अब आए हैं बाहर तो पूरा एंजॉय करो। एंजॉयमेंट का ये टाइम है, ये हमारे आगे वाले आने वाले टाइम में यही हमारी याद बन के रह राइट, जाएगा। तो ऐसे राइट, वो दोनों को सेट करके चलते थे। राइट। राघव, व्हाट इज योर मेमोरी अराउंड दोस ट्रिप्स? क्या हमने सीखा वहाँ से? उन ट्रिप्स में यही सीखा कि हाँ आप घूमो फिरो मज़े करो। एक ही ज़िंदगी है, यू ओनली लिव वंस, तो क्यों ऐसे डर डर के या लाइक अपने आप को दबा कर जीना। घूमने गए हो, घूमो, खाओ पियो, ऐश करो। यही सीखा और यही कर रहे हैं अभी तक। सही बात है, चिल। Akanksha, how does travel shape a child's thinking? I think before I answer that, I was listening to what Mama was saying, and I think I never met Dad, never get a chance to meet him. I have only talked to him on the phone. What she is saying, how she's picturing him, saying that he was enjoying in the moment. I think you do the same. You are just exact the mirror copy, right? When you go out, you go all out. You go all out. Even if you have 10 minutes to play with Ira, you spend those 10 minutes by just living in the moment with Ira. No talking about business, no talking about anything, just playing with Ira. I think that is a very important thing in a child's life. That's the biggest compliment for anybody, to be like father. Yeah. Okay, so ट्रैवल कैसे चेंज करता है, मतलब किसी बच्चे की थिंकिंग को? जैसे हम आयरा के लिए देख रहे हैं, वी प्लान कि हम उसको घुमाएं फिराएं, how does that work for any I child's think thinking? ट्रैवल इज समथिंग कि आप चाइल्ड को उसकी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से खींच रहे हो और उसकी ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि वो न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करे. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टुक हर टू साउथ कोरिया, seeing new people, seeing new food items, seeing diversity around her, when she went to Goa, when she traveled in plane, she went to some other some many places that she went to. She was observant, she was observing new people. That actually helps child shape, that helps child shaping his or her brain a lot. They tend to adapt the new lifestyle very easily. New habits, new lifestyle, new routine. It's easy for them. It's easy for the children who travel a lot. It's like giving them practical life skills rather Exactly. than teaching them life skills. Yeah. Right. Ira, question for you. Are you ready? Ira, are you ready? चलते हैं last question, okay? Are you ready? लास्ट कोचेस में हम चलते हैं. Right, yes. So आप बताओ, आपको घर पे रहना अच्छा लगता है कि घूमी फिरी करनी? घर पे रहना अच्छा लगता है. और जब आप घूमने गए थे तो आपको क्या याद है वहाँ से? गोवा गए थे आप? आई एम गोवा. तो वहाँ पे कैसा रहा आपका ट्रिप?
बहुत अच्छा। क्या किया वहाँ पे आपने? बीच बहुत बीच पे अच्छा। क्या किया था? बैठ के बेटा, आप ऐसी आवाज़ नहीं आती, माइक में आंसर करो। बीच पे मैंने वाटर प्ले किया था और हम्म सैंड प्ले की। हम्म तो आपको घर रहना अच्छा लगता है कि घूमने जाना अच्छा लगता है? घूमने जा। अब हम कहाँ घूमने जाएंगे? Slide. Yes, slides. Ice cream. Yes, an ice cream. And good. Okay, घर। right. And then I think travels सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो एक्सपोजर मिलता है that expands our ambition, taste and confidence. उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तभी आप रियल लाइफ को उस हिसाब से जीना शुरू कर लेते हो. नेक्स्ट लेसन इज़ बेसिकली जो आई थिंक मैंने रियल लाइफ में बड़ा इम्प्लीमेंट करा है कि स्पेंड फ्रीली बट अर्न बिगर. तो जब खर्चने की बारी आए तो उसको भी पूरी शिद्दत के साथ खर्चो, लेकिन ऑलवेज थिंक बिगर अबाउट अर्निंग. एंड दैट वी मेंशन कि फादर हैज़ नेवर आस्क्ड अस कि जब भी हम घूमने फिरने जा रहे हैं तो इट वाज नेवर अबाउट मनी. ही ऑलवेज टॉट अस कि काम दबा के करो, अच्छी लाइफ को जीने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल. सो नेक्स्ट लेसन इज डेफिनेटली दैट प्रेयर, सेवा एंड साइलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ. स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बिल्ड्स फोकस एंड कंट्रोल. मतलब हमने ना फैमिली के थ्रू ये सीखा है कि रेगुलर टेम्पल विजिट, डेली प्रेयर, कम्युनिटी सर्विस, इट ऑल वाज पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑल थ्रू द लाइफ. एंड नाउ ऑल्सो मम्मा आप यहाँ पे कनाडा में गुरुद्वारे में सेवा करना, मंदिर में जाना, वहाँ सेवा करना, whenever it's a chance. And as I said earlier also, you're a giver. Like whenever, even in the small family gatherings also, it's more of कि you are the one who's eating at the last, you are the one who's actually गए किसी के घर में है लेकिन वहाँ पे आप ही खाना बना रहे हो. In that sense, like you are that helpful. So मतलब कैसे ये सेवा वाला जो भाव है या ये जो गिवर वाली माइंडसेट है, ये कैसे पार्ट ऑफ लाइफ रहा है हमेशा? सेवा वाली भावना ये कह लो कि जैसे कि ये शुरू से ही है, रूट से ही है हमारे हमारे मतलब शुरू से ही हमें ऐसी शिक्षा दी गई कि सेवा ही करनी चाहिए. मतलब सिर्फ शिक्षा देने से ही नहीं शिक्षा सीख जाता इंसान, ना उसको थोड़ा सा अपने आप में होना भी चाहिए. जब हम सेवा करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है कि चलो शुक्र है हमने किसी के लिए किया है, किसी के लिए किया है, हमने किसी को खुश किया, हमने परमात्मा को खुश किया है. ऐसा करते हैं जब सेवा करते हैं तो सेवा से सिर्फ अपने मन को नहीं, मन और तन दोनों को शांति मिलती है. मन को शांति मिलती है, तन की एक्सरसाइज होती है, दोनों काम होते हैं. और जो मन को खुशी दे तो वो काम करना ही चाहिए. सेवा राइट, मन में डेफिनेटली. चाहिए. आयरा, क्वेश्चन फॉर यू. आपको दादी के साथ टेंपल जाना अच्छा लगता है? क्या करते हो दादी के साथ टेंपल में? प्रसाद. हम्म जय. जय. और घर में जो टेंपल है, कान्हा जी हैं, वहाँ पे आप क्या क्या करते हो दादी के साथ? टिक्का. टीका लगाते हो, लाती हूँ. उनको सुलाते हो और मॉर्निंग में उठाते भी हो. राइट. सो आई थिंक नेक्स्ट व्हाट आई लर्न फ्रॉम द जर्नी वाज कि कंफर्ट एंड स्ट्रगल दोनों चीज़ें ही लाइफ में सिखाती हैं. हम एक चीज़ के ऊपर अगर रिलाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम एज अ किड जब हम ग्रोन अप हो जाएंगे तो हम टैकल नहीं कर पाएंगे. अ चाइल्ड शुड लर्न ह्यूमिलिटी एंड डिग्निटी टुगेदर. मेरे को याद है जर्नी जब मैं आफ्टर 12th फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी गया तो एडमिशन कराते वक्त वी हैव बीन ऑटो पे गए, बस पे गए, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ से सिखाई गई कि पहले दिन से कंफर्ट इज़ नॉट देयर फॉर यू. यू हैव टू गेट दैट कंफर्ट विद योर अचीवमेंट्स ऑल्सो. एंड आई वॉज द फर्स्ट, मतलब घर से पहली बार बाहर निकला, वहाँ पढ़ने गया. आई वुड से उस जर्नी में पहले सेमेस्टर में आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर. एंड व्हेन यू गिव बैक those achievements on the expectations of your family, they definitely reward you on that. तो struggle करी, achieve करा and then comfort मिला, ये हमेशा से जर्नी रही, यही सिखाया गया. तो मम्मा आप बताओ कि मतलब ये दोनों चीज़ें साथ बाय साथ सिखाने का क्या माइंडसेट और क्यों जरूरी है ये? दोनों जरूरी हैं. जैसे कहते हैं सुख और दुख दोनों अगर सुख होगा तो दुख का एहसास होगा, दुख होगा और सुख का एहसास होगा. इसी तरह अगर हम बच्चों को पूरा कंफर्ट ही देते रहें, पूरा कंफर्ट दे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस कंफर्ट को प्राप्त करने के लिए पेरेंट्स की कितनी मेहनत लगी है. तो अगर उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखें और उनको ये बताएं कि कंफर्ट लेना है तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा. अगर वो स्ट्रगल करने के बाद कंफर्ट लेते हैं तो बच्चे को उसका थोड़ा समझ आती है कि इसका टेस्ट ही अलग है. तो मतलब उनको जो आगे आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है तो उनको कंफर्ट के साथ थोड़ा स्ट्रगल का बताना ही पड़ेगा कि ये करना चाहिए. राइट. तो दोनों का बैलेंस बनाकर अगर चलो तो जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते. राइट. राघव, व्हाट डिड दैट बैलेंस टीचेस यू?
बैलेंस टीचर्स में लाइक कि वो बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम रेडी हों, स्ट्रगल के लिए भी और कंफर्ट के लिए भी। ये नहीं कि सिर्फ हम स्ट्रगल कर रहे हैं और उसको इंजॉय नहीं कर रहे, कंफर्ट नहीं ले रहे, तो वी आर मिसिंग ऑन समथिंग। तो अगर दोनों चीज़ें मिलेंगी, साथ बाय साथ चलेंगी, तो हम दोनों चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, करना चाहिए भी। और यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। इट्स लाइक प्रिपेयरिंग इन एडवांस कि हाँ, आप कोई भी सिचुएशन हो, आप उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हो। तो फॉर मी, मेरे लिए स्ट्रगल इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले घर पे था तो मम्मा पापा थे तो वो कर रहे थे। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में मूव हो गया तो यू वर लाइक अ फादर फिगर टू मी टू टेक केयर। हम रहते थे, आई स्टिल रिमेंबर कि हम रेंट पे रहे हैं कुछ देर के लिए, 2-3 महीने, फिर फ्लैट ले लिया वही जलंधर वाला। फिर हमारा लाइफस्टाइल तभी से ही डिफरेंट था, एवरी डे बाहर खाना, घूमना, एवरी वीकेंड मूवी, हर चीज़ करी जो हमने करनी थी। तो हाँ, मेरी लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं था, पर हाँ, जितना था अभी भी मेरे को याद है, वो करता हूँ। पर इट वाज मोर कंफर्ट फॉर मी जस्ट बिकॉज you were a father figure to me, you still are a father figure to me, plus I had a dad before, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। राइट। उस लाइफस्टाइल में वो मेरे फ्रेंड्स सारे वो भी याद करते हैं गाड़ियों वाली चीज़ें। गाड़ियाँ बड़ी चेंज करी हैं हमने, गाड़ियाँ बहुत चेंज करी। कार्स के साथ बहुत एंजॉय करा है जलंधर में। सो आकांक्षा, लाइक हाउ डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड बी रेज्ड अराउंड मनी? They should learn how to earn money and how to they should learn how to earn money and how to value it. When I was only 17, I came to Canada, and I think I have a lot of struggle. I have faced a lot of struggle because I was the only one. There was no family or anything. I have faced a lot of struggle. I had money, but my parents, I think back home, always taught me that you have the money, but you're gonna use the money when you needed it the most. That's how you are going to learn how to earn money and how to value it. I know if I was supposed to, if I fall somewhere, they are there to hold me. They have money, they have resources, they will hold me. So I was not afraid to struggle. I was not afraid to learn my own path. That's what I think we are teaching Ira at this moment. Slowly and slowly, how to carve your own path, how to earn money, and how to respect and how to value it. Ira, question for you. Do you have money? Ira just say your money is my money. आयरा इधर देख के बताओ। अब फिर हमने जाना नहीं, जाना नहीं, फिर लेके नहीं जाना, कुछ कहीं नहीं लेके जाना। चलो बताओ, आपके पास पिग्गी बैंक है? Yeah, I have क्या है उस पिग्गी बैंक में आपके पास? coins, पैसे, और बच डॉलर्स, कार्ड्स। Ira बोलो। Ira say Right. dollars, cars, credit मैंने- cards, everything. मैंने ले लेने पिग्गी बैंक में से डॉलर और आपको कार्ड्स। आपको जब टॉयज लेने होते हैं तो आप अपनी मनी से पे करते हो कि किसकी मनी से पे करते हो? बैग में से, खुद की मनी से पे करते हो? ओके, ग्रेट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर्स वी हैव गॉट। बट हाँ, मतलब इन सारी जर्नी से, सारी कन्वर्सेशन से डेफिनेटली वी कैन हैव मोर स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हैं लाइफ के थ्रू। बट सारी चीज़ों में जब ये चांस मिला टू लुक बैक कि एक्चुअली में जर्नी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे ये सारा पर्सोना बना, कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनती है, इट इज़ डेफिनेटली विद द अपब्रिंगिंग ऑफ द पेरेंट्स, योर इन्वायरमेंट, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हाउ यू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट, ताकि आप डाउन द लाइन उन चीज़ों को उतना ही एग्रेसिवली आप परस्यू करते हो। अगर बचपन में सारा कंफर्ट मिला हो तो आप बड़ी स्टेज पे आके स्ट्रगल नहीं कर सकते। अगर बचपन में सारी ही स्ट्रगल मिली हो तो आप ऊपर बड़ी स्टेज पे आके फिर आप कंफर्ट भी नहीं ले पाते आपका, क्योंकि माइंड सेट स्ट्रगल का हो जाता है। तो आई थिंक इट्स द बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप लाइक ऑल द ऑडियंस हुज वाचिंग दिस, उनको बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे, हाउ द वॉच फैमिली हैज रेज्ड अस, हाउ द वॉच फैमिली हैज बीन रेज्ड to this level today, and we are still doing a lot with the guidance of our late father, Mr. Ashok Watts, and this is the Watts family story, and with the guidance of our late father, Mr. Ashok Watts, and we as a family are held together by my mother, Vanju Watts, carried forward by my brother Raghav Watts, lived daily through wife Akanksha Watts, and shining through our daughter Ira Watts, all under the blessings of Lord Krishna and Kanha Ji. This is a start of the series in Canada. We'll be looking forward to have more
real stories from real founders, real builders, real people in Canada, and I look forward to this series in Canada. See you again. Thank you, everyone.